क्या मनन चिंतन मंथन चला? What did you learn? Well, I've got some questions for Baba today. प्रश्न है बाबा के लिए आज। Okay. Is it correct that Baba's main responsibility is to make the Navratan or the other 8 Nishchay of Baba's path? ये पूछ रहे हैं कि बाबा का मेन जो कार्य है वो बाकी नवरत्न में जो 8 है उसको निश्चय दिलाना, निश्चय करवाना, वही मेन कार्य है। क्या पूछ रहे हैं? निश्चय तो बाबा का मैंने कहा ये 500 करोड़ को निश्चय दिलाना है, सिर्फ 9 रत्नों को ही क्यों निश्चय दिलाना? Baba's role is to see that all the 500 crores also have the faith on the Father, not just 8. So the 8 will have faith in Baba, but the rest of the religion, will they only ever believe that their sweet soul is Prajapita? 8 धर्म वाले जो भी है वो सारा जो बीज मूल बीज है वो प्रजापिता ही है, ये मानेंगे क्या? जो दूसरे 8 धर्म है बिल्कुल मानेंगे। जो भी है दूसरे धर्म है और उन सबका बीज तो प्रजापिता ही है। Yes, because Prajapita is the seed for all the 8 religions. Yes, but then will all the other 108 and the rest of the people, they'll only believe in their seed soul, won't they? They won't ever believe in उनका ये प्रश्न है, वो प्रजापिता को मानेंगे या उन धर्मों के जो मूल बीज है उसको मानेंगे? कौन? जो जैसे इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म वाले बाप को मानेंगे जो मूल बीज है, या उस धर्म का जो बीज है, इस्लाम धर्म का जो बीज है उसको मानेंगे? वो तो जो जिसके संग के रंग में ज्यादा रंगा होगा तीसरा जन्म में, वो उसी को मानेगा। Baba is telling, he who has come under the influence of whom will believe in the same person. In 63 verse. So under whose influence you have come in the 63 verse, you will believe in the same. उनका प्रश्न है कि प्रजापिता को ही मानेंगे ना, वो कि यही वो पहले अपने धर्म पिता को मानेंगे जिसके संग के रंग में ज्यादा रहे हैं। 63 जन्मों में जिसके संग का रंग उन्होंने ज्यादा लिया है वो उसको पहले मानेंगे, उसके थ्रू फिर प्रजापिता को। They will accept their religious fathers in under whose influence they have been mostly during their 63 births, and through them they will accept Prajapita. Yes, they will all accept. On the basis of whom they have come under the influence of? In the 63 births, they will come under the influence of their seed, but now in the confluence age, well, they will, from what you've said, they will accept Baba as Prajapita. Just one. ये संगम युग में कम से कम मानेंगे क्या? बात ही मूल बीज है। हाँ, दूसरे सारी सृष्टि जाएगी साथ में तो भी जाएगी जब तुम आपको पहचानेगी, इंसान कैसे करेगी? Mara is telling all the 500 crores, first they have to accept Prajapita as the father. Then only they can go up. They will, okay. Then only they will be liberated. I thought that was an easy one. Mummy owns the title of Kali. Yes? What I want to know is exactly what is it that she does to earn that title? जगदम्बा को जो काली का ये उपाधि मिलती है, तो ऐसे क्या कर्म करती है जिसको काली? तो सारे जगत की माँ है, अच्छे से अच्छों की भी माँ है, देवताओं की भी माँ है और राक्षसों की भी माँ है, डेविल्स की भी माँ है। Actually, she is the mother of the whole world. So she is the mother of even the best of the best, and also the demons, and also of the demons. इसलिए संसार में जितनी भी माताएं हैं, चाहे डेविल्स की माताएं हो और चाहे डिटीज की माताएं हो, और सबका बीज उसमें भरा हुआ है। In this world, let there be any number of mothers, be it the mother of devils or deities. She has got all those qualities imbibed in her. So when this will come out in her action,
she'd be very strict with herself. बाबा ये पूछना चाहते हैं कि जब ये जगदम्बा की कर्मणा में होगी तो अपने आप पर बहुत कड़क रहेगी क्या? ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा फर्क हो ही जाते हो। जो माताओं के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, अच्छे से अच्छी, बुरे से बुरी, और सारी क्वालिटीज को अपनाने वाली वो जगदम्बा है। She has incorporated all best of best and also worst of worst qualities which are all there in other mothers in her. So it is not definite that she has to become strict when it comes to contact. It's not definite that she has to become strict or lenient. According to that. उसके अंदर माँ का पार्ट बजाने वाली आत्मा तो ब्रह्मा की है। Because the person, the soul who is playing the role of mother is actually of Brahma Baba. Dala Lekarajana. In her. Okay, well, what I'm trying to get to is, I don't know if you can answer this. It said that Jagadamba was going to straighten out the house of the father. It said that Jagadamba will straighten out the house of the father. जो जगदम्बा है वो पाप का घर सुधारने आई है। So she's going to do this by her purity, which वो अपने पवित्रपना से ये करेगी या so that she'll speak such clear gyan, everyone will realise their bad actions, and then sort themselves out. वो कैसे सुधारेगी? आपका काम है आखिरी शक्ति है उसका विनाश करना। बाप मनुष्य शक्ति का जो पिता है उसके थ्रू शिव बाप आकर के मनुष्य शक्ति में जो डेविल्स हैं उस आखिरी शक्ति का विनाश करना, वो बाप का काम है। और जगदम्बा उस काम में सहयोगी है। तो वो जो सहयोगी है वो शक्तियाँ असुर संहारिणी गाई हुई है। असुर संहारिणी जो शक्तियाँ गाई हुई है उनमें मुख्य है जगदम्बा। जगदम्बा जब काला रूप धारण करती है तो जो भी असुर काला पाठ बजाने वाले हैं उन सबको शिव शक्ति बन करके खलास करती है, महाकाली बनती है। इसका प्रश्न है कि वो कैसे करती है? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, हाँ, प्योरिटी से होती है स्थापना। मुरली का वाक्य है। Father's job is to destroy the devil world. Shiva Baba, to father of humanity, will destroy the devil world, and Jagadamba will play a supportive role. So those Shaktis who play a supportive role are called destroyers of the demons. The main agent amongst them is Jagadamba. When Jagadamba plays the negative role, which is the role of Mahakali, all the demons playing the negative role will all be destroyed. Impurity results in destruction, and purity results in construction. It has been said in the Murli. Your purity can be by your own purity, creating unity. प्यूरिटी तो आपका अपना पवित्रता हो सकता है ना, जिसके आधार से आप यूनिटी को बढ़ा सकते हो। हाँ, यूनिटी बढ़ाने के लिए छोटी मम्मी निमित्त बनी हुई है। So Baba is telling for that unity, Choti Mummy, Vaishnava Devi, she's the limit. The role of many PBKs, everyone thinks that they know Srimad and spends a lot of time telling everybody else what they should do. PBK में अभी ये देख रहे हैं, हर एक श्रीमत 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 करके जाड़ रहे हैं, हर कोई श्रीमत का ही उदाहरण ले रहे हैं। And they often quote playing the role of Jagadamba. वो सब के सब जगदम्बा का ही जैसे अनुसरण कर रहे हैं। वो तो इसलिए कर रहे हैं कि जगदम्बा है चंद्रमा, क्योंकि ब्रह्मा चंद्रमा उसमें प्रवेश है, और ब्रह्मा कुमारियों में जो कुछ भी है बीकेज में वो सब ब्रह्मा को फॉलो कर रहे हैं। ब्रह्मा माने ब्रह्मा बड़ी मन, तो जो बीके में फॉलो कर रहे हैं वो आधार मूर्त है और उनके बीज हैं, बीज है चंद्रवंश बीज रूप आत्मा है। उन चंद्रवंशी बीज रूप आत्माओं को जितने भी इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस आदि के जो बीज है वो सारे जगदम्बा पर फॉलो करेंगे।
मेरी प्रजापिता फॉलो करेंगे। मतलब ये गलत है क्या, ऐसे श्रीमत करके? नहीं, वो नियम है कि जो आधार मूर्तों में जो पार्ट बजा है वही पार्ट बीज रूपात में बजाएंगे, दूसरा बजा नहीं। भले श्रीमत हो ना श्रीमत हो और गैर श्रीमत हो, श्रीमत के बदला हो, लेकिन वो बजाएंगे वही पार्ट, क्योंकि दूसरे धर्मों की आत्मा है, सूर्यवंशी नहीं है असली। आप अनुवाद करते जाएंगे तो आप खुद प्रश्न करने लग जाएंगे, इनका समाधान रह जाएगा। आप समझ जाएंगे, ये नहीं समझ पाएंगे। Baba is telling, actually Jagadamba is from the Chandravanshi. So from Moon dynasty. Yeah. So all the seeds of other religions, that is Islam, Buddha, Christ, and their following, वो जगदम्बा को फॉलो करेंगे। they all follow Jagadamba. And they do not follow the Surya, that is the sun, that is father. So this has happened. This has the DK following because they follow the mother. They don't know about the father. They don't want to know about the father. But all the PBK is doing the same at the moment. Well, because the seeds, yes. It is a rule that what role has occurred in other modes will repeat in the seed roles. It will always happen, be it Srimad, non-Srimad or against Srimad, because they are not real Suryavanshi. बाबा ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पीवीके में जो झगड़ा होता है सब आपस में मनकों में, तो अंत तक ये जरूरी है क्या ये झगड़ा होना? अरे जब आधार मूर्त में दूसरे धर्म की आत्माएं हैं और दूसरे धर्म की आत्माएं आधार मूर्त में जो आई है वो दूसरे धर्मों से ही आई है। दूसरे धर्म आपस में लड़ते रहे हैं ना 63 जन्म, तो वो आधार मूर्त में शरीर में दिखाई देगा ना। और आधार मूर्तों के भी बीज है एडवांस में, तो एडवांस में तो और ज्यादा लड़ाई करेंगे, तो उनके भी बाप है। Baba says that all from different religions, they have come in the Adarmut family in BK. So they are from different religions. All the different religions have been fighting. Infighting was there since 63 birth. So those souls who have come to the Adarmut, this one, they will also have that quality, fighting, infighting. And again, their seeds are in the PBK family. So this will be reflected even in the PBK family. They will be more powerful. So in this family, in this spiritual family, we've got mother or father and mother, Charlie. They're giving Srimad. Now, is there any practical basis for decision making? And the father gets Srimad. Yeah. So we'll follow. Well, eventually there'll be mother and father, won't there? And we'll follow mother and father. बाबा श्रीमत देने के लिए माँ और बाप बैठे हैं। माँ हमने श्रीमत देने के लिए बैठी हुई है, इट इज राउंड। बाबा इससे नहीं, दो आदमी श्रीमत नहीं दे, शेष मत एक की होगी, शेष मत 2, 3, 4 और 5 की नहीं होती है। कहीं मुस्लिम आया है कि 2, 4, 8 की श्रीमत होती है? ओनली बाबा यही तो सारी विधर्मियों ने यही बात तो सिखाई हुई है। See, Baba said, you have to correct yourself that this is wrong. That only one person can give the Srimad. Has it ever come in the Murli that 2, 4, 8 persons can give Srimad? Vidharmis have taken this point strongly for their own benefit. So practical decision making in the family. अब ये सोच रहे हैं कि जो परिवार में जो डिसीजन लिया जाता है निर्धार, तो उनका कोई आधार नहीं बनता, क्योंकि जो भी निर्धार करना है वो बाप को ही निर्धार करना है, तो किसी और को निर्धार करने का कोई ये नहीं बनता। नहीं, अपना शुभ राय दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं दे सकते कोई। बाबा से nobody can give direction, कोई नहीं दे सकते। बाबा से they can give their advice, but good advice, but they cannot give the decision to direction to somebody. Only father can give the direction. So there is no hierarchy. So, no hierarchy. So that's why Always go back to Murli. Yes, but the trouble is everyone thinks they know Srimad, don't they? Only follow one. बाबा इनका यही है, अभी हर कोई यही समझते है, हमें भी मालूम है, लेकिन नंबर वार मालूम है ना। सुप्रीम कोर्ट का आइडिया बना हुआ है। It says in the early there, respect should be given to
those who have more knowledge. See, what Baba said was, okay, everyone knows Srimad, but number wise, and that is why Supreme Court is there to decide which is the right. Supreme Court. That is Supreme. That's it. The Supreme Court. Okay. So putting sisters in front, does this mean not to guide them and to cooperate with them and to accept their decisions? ये पूछ रहा है कि जो बहनों को सामने रखा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका मत वो जो कहते हैं उनको मान लेना सही है। अगर कहीं शंका आती है, हर बात जो है वो टैली करना है मुरली से। अगर शंका आती है कि ये राइट नहीं है, श्रीमत के अनुकूल नहीं है, तो फिर वेरिफिकेशन। Baba says that if you have to tally whatever they say, if the sisters say, you have to tally it with the Murli. If there is a contradiction, if you find that there is something confused, then you have to take a verification from the father. If you feel that there is something which is confusing and not accordingly proper. So the problem is that practically means, since everyone thinks that they know what Srimad says, then every instruction from the sisters often gets, people think it's wrong. So that it's not like bringing sisters in front, it's like querying everything they say. ये कह रहे हैं कि जो बहनें कुछ भी कहेंगे, अभी वो उनको ऐसे लगेगा कि ये गलत हो सकता है हर बात पे, तो हर बात के लिए वेरिफिकेशन। ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले वो जज करना है कि राइट है या रॉन्ग, कैसे जज करेंगे? बाप नहीं, बाप से नहीं, हर जगह बाप नहीं बैठा हुआ। बाप ने जो कुछ बोला है वो मुरली से जज करना है, राइट है या रॉन्ग है। और हर जगह बाप अवेलेबल थोड़ी है, लेकिन जब तक अगर खुद जजमेंट नहीं कर सकते हैं तो और जो बड़ी बहनें हैं उनके पास पहुंचे, जिनको बाबा ज्यादा रिगार्ड देते हैं। हाँ, अगर उनसे भी हल नहीं होता है तो जब तक बाबा का कंसेप्शन न मिले, वेरिफिकेशन न मिले, तब तक उस बात को फॉलो कर लेना जो बड़ी बहनें बोलती है। और जैसे ही बाबा का कंसेप्शन मिले वो बात उनके बहनों के सामने रख देना और उसको डिस्कस कर देना। Baba says that whatever Brahma Kumari says, you should judge whether it is right or wrong. You should judge it with whatever Baba has said in the Murlis. Baba cannot be present, available everywhere. If you cannot judge yourself, ask the senior sister to whom Baba has given more regard. If still not satisfied, then follow the same till you get the right conception or verification from the father. Then put it in front of them and dismiss their words. In general, you do get most of the answers from the Murli. इनका ये प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, ये भाषा आती नहीं ना, तो अनुवाद करने वालों पर निर्भर हो जाते हैं। सभी विदेशियों का यही हाल, दक्षिण भारत के विदेशी हैं उनका भी यही हाल। तो उसके लिए तो यही है कि हिंदी भाषा बहुत सहज भाषा है, दुनिया की सबसे ज्यादा सहज भाषा हिंदी है। अगर वो रूसी क्या नाम है, रूसी माता अगर हिंदी सीख सकती है तो आप क्यों नहीं सीख सकते? Baba says that most natural language is Hindi, most easy language is Hindi, simple language. So anybody can learn it. Baba gives an example of Lucy Mata who learned Hindi, and if she can learn Hindi, then why can't you learn Hindi? So that there will not be any no need of interpreters between fathers. So it is क्या है, आपस में जो अपने देश के लोग हैं उनसे ज्यादा स्नेह और प्यार होता है, तो उसी भाषा में बात करते रहते हैं। बाबा से प्यार नहीं है, इसलिए बाबा की भाषा सीखने का प्रयास नहीं करते। Baba says that those who are belong to one country, they in between them they will talk about in their language only, so that they will have the affection to the people around that place, and they will go on speaking on their language. If they have love with the father, then they will learn the language of father. मदर टंग होनी चाहिए ना, बच्चे की मदर टंग होनी चाहिए ना। अगर बच्चा है तो मदर टंग होनी चाहिए।
children should have their mother tongue, no? So if they are the child, they should also be having their mother tongue. I'm working on it. The Prophet says that we should become deities and not warriors. And deities tolerate. It's the main property of deities. बाबा कहते हैं कि हमें क्षत्रिय नहीं बनना, हमें देवता बनना है, क्योंकि जो देवता का गुण है वो सहन करना है। वो ठीक है, ठीक है। What is it that shouldn't be tolerated? ये वो क्या चीज है जो सहन नहीं करनी चाहिए? ऐसी क्या चीज है? ऐसी क्या चीज जो सहन नहीं कर सकते? नहीं करना चाहिए। जो सहन नहीं करना चाहिए। हर बात को सहन करते रहेंगे तो बाबा की श्रीमत की बरखिलाफी वो सहन नहीं करनी चाहिए। बाबा says that anything against the direction of father you must not tolerate. anything that is against the Srimad, that should not be tolerated. श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को तो रावण संप्रदाय समझो। Baba is telling anything that is against Srimad, think that it is the direction of the Ravan Sampradaya. Yes. Who is speaking that against Srimad, think of them as Ravan's Clan. In the Mahabharata, Krishna provokes Arjun, Bhim, Yudhishthira to break the warrior code. Yeah? महाभारत में कृष्ण अर्जुन और भीम, is it? भीम या Now, Bhim, Yudhishthira. भीम युधिष्ठिर अर्जुन इन सबको मतलब क्षत्रिय धर्म का नियम तोड़ने के लिए मतलब प्रेरित किया। So what is the significance of this breaking? इसका महत्व क्या है? क्षत्रिय धर्म का नियम तोड़ने के लिए प्रेरित किया। अच्छा। So it is a good thing. तो उनको तो देवता बनना है, भगवान तो आज नारायण बनाने के लिए आए हैं। गीता में जो ज्ञान सुनाता है वो नर से नारायण देवता बनाने का ज्ञान सुनाता है, लेकिन क्षत्रिय बनाने का ज्ञान सुनाता है। So the knowledge that is being given in the Gita is for the sake of making a human being into a deity. So it is a good thing. Breaking the warrior. लेकिन थोड़ा क्षत्रिय what he says is a good thing. अब इतना ये फर्क है कि कृष्ण जो छल कपट करता है, मतलब जो क्षत्रिय धर्म युद्ध धर्म तो बाबा ने युक्ति बोला है। The rest of the war is carried out according to the rules. Strategy. What Baba says it is a plan or a strategy. It is not what he is doing is wrong. To get the work done, it is a strategy. In the confluence age now, presumably this relates to something. अब जो संगम युग में ये किस पे लागू होता है, जो ये चल करता है कृष्ण, मतलब अर्जुन और भीम से जो युद्ध नीति के खिलाफ होके भी जीतने के लिए कोई संदर्भ आते हैं जिसमें वहाँ पे जो युद्ध धर्म को तोड़ते हैं। युद्ध धर्म जो है वो मनुष्यों के बनाए हुए हैं शास्त्रों में। बाबा says that principles of war are laid down by humans. It is not made by in the scripture. So it is not valid. That code is not valid. Right, so is that the same as saying anything and everything will be done eventually to destroy Ravan Raj? तो इनका यही प्रश्न है, मतलब अंत में रावण राज्य को खलास करने के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। खाना पड़ेगा ना, बाबा से yes, तो it should. खा जाएंगे। बाबा से yes, it should be done, or else they will eat. इसलिए तो बोला रावण बनता है, कृष्ण कंस बनता है। That is why it has been told in the Murli. Ram himself becomes Ravana and Krishna himself becomes Kansa. नहीं तो ये असर खत्म कैसे होंगे? Or else these devils won't be destroyed. These devils won't be destroyed. If the father, that is Ram, doesn't take the role of Ravan, just in order to finish off those devils. Yes, बाबा कहते खुद कहती है मेरा टाइटल नहीं है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिं तक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये देवताओं का टाइटल है, मैं इस टाइटल को धारण नहीं करता हूँ। Baba himself says that these are the titles of the deities, that is completing all the divine qualities, completing 16 celestial degrees, and completely non-violent and benevolent.
It is not the qualities of the father. It is the qualities of the deity. I want to carry all these titles. जो मैं अगर सर्वगुण संपन्न बन जाऊं तो ये गुणहीन जो है, जो अवगुण या अवगुण होते हैं, इनके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा? Baba says, if I take that title, then who will control all those who are in the lower stages, who don't have any qualities? Who will control them? मैं अगर संपूर्ण अहिंसक बन जाऊं तो ये तो खा जाएंगे देवताओं को। Baba says, if father becomes non-violent, then they will gobble up those will gobble up the deities themselves. Okay, so that's why Krishna is said to be head of the Yadav and sort of described as the Deshi. And presumably that's also why it's part of the earlier where it says that Jagadamba is staying with the family because his father has left. बाबा इसीलिए ना बाप विदेशी बना हुआ है और कृष्ण यादवों का हेड के रूप में दिखाया गया है, और माँ जो है वो परिवार को संभालती है। मतलब पिता छोड़ के भी जाए तो माँ संभालती है परिवार को, इसलिए गया हुआ है। क्या पिता छोड़ के जाए तो माँ ही वो परिवार को संभालती है, माता छोड़ के नहीं जाएगी। ये तो भक्तिवाद में ऐसे ट्रेडिशन चली आई है कि पुरुष सन्यासी बनते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पुरुष ही सन्यासी बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Baba says this is the tradition followed in the Bhakti Marg that men become sannyasis and leave the family. But there is nothing like that. Only men become sannyasis. This is not the sannyas of the mortal world. This is the unlimited world. Different type of sannyas. Right. I understand that, but anyway. समझ नहीं पाए विदेश का संन्यास क्या चीज है, समझ नहीं। विदेश का संन्यास माने गर्भस्थ में रहना, लेकिन विकारों से संन्यास करना। The sannyas of the unlimited world means you have to live in the household but remain free from all the vices. अपने मन से संन्यास करना। You should be sannyasi from the mind. Yes. But why is it really saying that when Baba won't be here later on and Nani was to stay? ये मुरली में एक पॉइंट आया है जिसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे कुछ है जो यदि ये बाबा भी छोड़ के जाए तो हम अंत तक पालना करेगी इस केस में। कहा जिस मम्मा के लिए बोला वो तो शरीर छोड़ गई, जिस मम्मा के लिए बोला वो तो शरीर छोड़ गई। कौन? ओम राधे मम्मा। अच्छा, आप वो उनकी बात छोड़ो, हम कह रहे हो जो असली है आज में थी और जो अंत में है उसका भी अभी यही हाल, वो भी शूटिंग यही कर रही है। क्योंकि रुद्रमाला गमन का है, रुद्रमाला गमन का मीन्स मेल। For Mama it has been referred, Om Radhe Mama has already left the body. The real Mama who was in the beginning and now in the end is also doing the shooting likewise because she is the seed of Rudramala. So it's not referring to her as the sustainer. No. मतलब ये जो कन्या माता है जो पालना देती है, अंत तक मम्मा पालना देगी, मम्मा के लिए भी ये लागू नहीं होती है ना ये बात? होगी, लास्ट में होगी, लेकिन वो उसी तरह से होगी जैसे बेसिक नॉलेज में दीदी दादियाँ जो है वो अभी पालना दे रही हैं अंत तक, लेकिन वो डिफेक्टिव पालना होगी क्योंकि उसका बाप नहीं होगा। बेसिक में हाँ जी, तो एडवांस में कन्या माता ही पालना देंगे। जिसके आसार तो अभी दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि आसार दिखाई पड़ रहे हैं उस हिसाब से माँ 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 चारों तरफ चिल्ला रहे हैं, माँ क्यों नहीं है, माँ क्यों नहीं है, माँ है, माँ होनी चाहिए। तो बाप तो स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट को कोई फॉलो नहीं करना चाहता, उसका नजदीक नहीं आना चाहता। माँ को बेवकूफ बनाना आसान है, और यहाँ तक बेवकूफ बनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा की जान ही ले ली। इसलिए बताया हुआ है कि बिच्छू जो होता है, बिच्छुनी, वो जब बच्चों को पैदा करती है तो उसका पेट फाड़ के निकलते हैं बच्चे। ये सारे बिच्छू चिंतन है रुद्रमाला के मण के, दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, सारे विदेशी ढेर सारी है। सूर्यवंशी तो बहुत थोड़े हैं, 10% ही है मुश्किल से, उसमें नंबर 12। कन्या माता को रिगार्ड देते ही नहीं, ऊपर चढ़ बैठते हैं, पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। जीके में देख लो जाके, और यहाँ भी अभी देख लो, कोई गीता पाठशाला देख लो जाके, माताओं के हाथ में कितनी सत्ता है।
अनुवाद करो। Baba says that Baba says the sustenance will be given by Mama at the last, but it will be the same way as the basic knowledge, where effective sustenance is being given by Didis and Dadis, because at the time father will not be present. Similar signs are also visible in the advanced knowledge, where everyone is crying out for Mama, because father is strict and nobody wants to follow or come closer to him. It is easy to fool the mother. They go to such an extent that they take her life. These are all scorpions, the Rudramanasis of other religions, who are in large proportions. But Suryavamsis are very little, less than 10%, and number-wise. they do not give regard to Kanya Matas. Instead, they dominate them and control them fully. See it in the beaches or here. Look at any Gita Pachala. See how much control Kanya Matas are having. बेसिक नॉलेज में भी सूर्यवंश की आत्मा यज्ञ के आदमी ही छोड़ के चली गई राम के साथ ही साथ। जो दूसरे धर्म की आत्मा है वो ब्रह्मा के साथ साथ लगी रही, पालना लेती रही, अंत तक ब्रह्मा ने पालना दी, यहाँ तक पालना दी कि जब तक उसका जान न लेगी। Baba says, those of the Suryanshi clan, they left with the father itself, in the beginning itself. And only the souls of the other religions, they went along with Brahma till such a time that they gobbled him. What happened is Baba is comparing them to the scorpions, the souls of the other religions. So it is told when the female scorpion gives birth to the children, They rip open yeah, the stomach to get out. they rip open the stomach and then they come out. the That is how they. So the only real substance, the true substance only comes from Shiv Baba. बाबा ये पूछ रहे हैं कि सच्ची जो पालना होगी वो शिव बाबा से ही आएगी है जो सच्ची पालना है छोटी मम्मी से आएगी। बाबा says the sustenance comes from the choti mummy or Vaishnav ji. प्योरिटी से पालना आती है। Baba says this palna sustenance comes from purity. महाकाली तो संहार करती जाती है। Baba says Mahakali will just go on destroying. महागौरी स्थापना करती है तो महाकाली संहार करती है। Mahagauri will be the she will do construction and Mahakali will do the destruction. Isn't Jagadamba shown with the lotus leaf of purity, lotus flower of purity in the Vishnu, picture of Vishnu? बाबा जगदम्बा को जो विष्णु के चित्र में कमल के साथ दिखाया गया है क्या है विष्णु की चित्र में कमल के साथ जो है कीचड़ में कमल लोटस बाबा से लोटस इन द डर्ट मड मड Yeah. So isn't the arm that holds the lotus flower, that isn't that supposed to represent Jagadamba, not Jagadamba? बाबा जो वो हाथ जो है जो भुजा है जिसपे कमल दिखाया जाता है वो जगदम्बा को दिखाता है या छोटी मम्मी को दिखाता है वो छोटी मम्मी नहीं जगदम्बा को दिखाता है कीचड़ में कमल रहता है द तो गुलाब का फूल है गुलाब गुलाब जगदम्बा छोटी मम्मी हाँ छोटी मम्मी बाबा says that Jagadamba is shown as the lotus in the mud and Choti Mummy is represents a rose. Rose represents Choti Mummy. रूह है गुलाब रूह है गुलाब. Baba says Soul like soul a like rose. a rose. Rose like soul. रानी कहा जाता है. फूलों की रानी फूलों का राजा. Baba says that the flower, king of the flower is the lotus and queen of the flower is the rose. Back in the Mahabharata, 5 Pandavas represent each of the Swadeshi religions. Yeah? And then महाभारत में 5 पांडवों को 5 स्वदेश का धर्मों के लिए दिखाया गया है. yeah, presumably it's the Kauravas, who the parts in the Kaurav family, who represent the Deshi religion. तो कौरवों को दूसरे विधर्मियों के लिए दिखाया गया है. The brother said in the early which of the Pandavas represent which Swadeshi religion, which probably doesn't matter, but which of the characters in the Kauravas
represent which of the Deshi religions? और कौरवों का ऐसे कौन सा गुण है जो विदेशियों के लिए लिखा? कौरव तो बनते ही वो हैं जो द्वापर के आदि से ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, जो नया धर्म आया उसी में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। कमजोर आत्मा है, वो किसी धर्म में टिकते नहीं है। इसलिए आज हिंदुस्तान में जो वो राज्य चल रहा है वो धर्म निरपेक्ष राज्य चल रहा है। कोई भी धर्म को मानो, हमें धर्म से मतलब नहीं, धर्म से उन्हें कोई सरोकार नहीं। वैसे हमको वोट चाहिए। Kauravas are those who from the Dwapar age, that is from the Copper age, got converted into the different religion. Whichever new religion came, they got converted, and today the situation is such that the government of India, the government which is ruled in India is that of that is Baba is comparing that to the Kaurav government, which doesn't give importance to the religion. Only what they want is the vote bank. Baba कहते हैं religion is might. Whereas Baba says religion is might. वो कहते हैं हमें धर्म से कोई मतलब नहीं। And the Kaurav government says that धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें धर्म की अपेक्षा ही नहीं। we don't want anything to do with the religion. Yeah, secular. We are secular. Secularism. Secularism. Talk about secularism. That is why the government has got no strength. गवर्नमेंट को ताकत नहीं है। Government has no strength of its own nowadays. और इनका ये पूछना था कि कौरव पांडव तो स्वदेशी धर्म वाले हो गए, तो कौरव को विदेशी यादव भी है ना, वो इसलिए कि वो यादवों के धर्म में से कन्वर्टेड होते हुए आ रहे हैं। जब इस्लाम धर्म आता है तो कौरव संप्रदाय की आत्मा है वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब क्रिश्चियन आते हैं तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोहम्मद आते हैं तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जहाँ देखते हैं कि यहाँ फायदा ज्यादा है, इनकी कर्जी कला दिखाई पड़ रही, वही कन्वर्ट हो जाए। Kauravas are Videshi because they have gone through conversion amongst the Yadav clan. When Islam, Christianity and Muslim religion came, they got converted. Wherever they see that the power is rising and beneficial to get converted, so they are लास्ट में उनका धर्म पिता आता है मर्दयान, और वो नियम बनाते हैं कि कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है। माने हर धर्म की कच्ची से कच्ची आत्माएं आकर के कन्वर्ट हो गई। Baba says that these Kauravas, they will go on in different religions, they go on in cycles, and in the end their spiritual seed comes, that is Dayananda Saraswati. He will establish that religion, Arya Samaji, in that anybody can become a Hindu. So he starts collecting all those. So any soul who is not very very raw souls, like they are not very strong, those souls also will start including in this dharma, including all those. देखिए हिंदुओं ने कभी भी दूसरे धर्म के बाद में मुझे कन्वर्ट हो गई आत्माओं को कभी आपने स्वीकार नहीं किया, हमेशा आपने उनको मेंटेन किए रखा। Baba says that in Hinduism, before that nobody used to take, and they used to never convert them to their religion. They will never call them. Nobody used to mix them. They used to have pure blood. They used to maintain their Pure blood. purity. आज समाज आगे सबको इकट्ठा करके सबको हिंदू बना दिया। Baba says Arya Samaji when it came, they started collecting everybody and made them. सारी कमजोर आत्माएं आकर के इकट्ठी हो गई। Baba says all the weak souls came and started gathering there. All the weak souls. Yeah. The Sikh Durham helps the family path the most. Yeah. But Baba says that those who go into the Sikh Durham are Kshatriyas with limited intellect, I think. तो बाबा ज्ञान में बताते हैं सिख में वो लोग जाते हैं जो कम अकल के, जो हिंदू है वही जाकर के अंतिम में सिख धर्म वाले बनते हैं, क्षत्रिय फॉलो करते हैं वाणी को। ये नहीं देखते कि इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मैंने एनालाइज नहीं करते। वो एक बार निश्चय कर लिया कि ये भगवान की वाणी है तो उसको फॉलो करना ही करना है। उसको गलत बोल नहीं सकता। हाँ, ये कोई को ये सुन नहीं सकते, उसको एनालाइज करते। गलत बोलेगा तो मार देंगे। हाँ और इन विधानियों से टक्कर लेने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए। इसलिए हिंदुओं ने इतनी टक्कर नहीं ले पाई क्रिश्चियन से और मुसलमानों से, जितनी सिखों ने टक्कर लिए, नहीं तो पहले ही खत्म हो जाते। Baba says that they follow Baba's Vani
Once they have decided that it is God's word, they are determined to follow upon it, but are unable to analyze what are its benefits or loss. They can't tolerate anybody analyzing it. But they have the strength to face, and once they have and once they have firm faith, they are ready to take on anybody. That is why the Hindus could not face all the Videshis and Vidharmis, and it was the Sikhs who came forward and faced all the onslaught, and they faced sword with sword. So, They come down. the logical corollary, the follow on of that would be that it's better to be not that clever. मतलब इसका ये मतलब हुआ कम अकल का होना ही एक रीति से सही है ना। ज्यादा अकल के होने से क्रिश्चियंस ने क्या किया, आतम बम बना लिए, उसी सच्ची को खत्म कर रहे हैं जिसमें रह रहे हैं। So the people with a lot of intellect, that is the Christians, what did they do? They with their intellect they created the atom bomb and they are destroying the very world they are living in. इसलिए बाबा कहते हैं मुझे बुद्धि वाले बच्चे प्रिय नहीं है, दिल वाले बच्चे प्रिय है। That is why Baba said, I don't like the children with a lot of intellect. I like those children with having regard. Asking questions then. मतलब इसका ये मतलब है ना, प्रश्न कुछ नहीं पूछना चाहिए। नहीं, प्रश्न पूछो, लेकिन प्रश्न जो है वो बुद्धि से भरा पूरा नहीं होना चाहिए, बुद्धि का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। It must not be an exhibition of the intellect. When you are asking questions, it's not big, you are showing off your intelligence. Yeah, the questions must not be such that you are exhibiting your intelligence. It must be questions which you feel in through your heart if you have some those. दादा ने राज को बना दिया, यही दुनिया वालों ने गलती की थी, इसलिए गीता से कोई फायदा नहीं हुआ, गीता ज्ञान से। यहाँ भी यही गलती कर रहे हैं, इसलिए गीता ज्ञान से कोई फायदा नहीं होना। वास्तव में गीता का ज्ञान निराकार परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ ने दिया। तो ब्रह्म कुमारियाँ भोलेनाथ के बारे में कुछ भी नहीं जानती, विष्णु के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, वो सिर्फ एक मूर्ति के बारे में बताती है। आपके पास ढेर सारा है समझाने के लिए। दुनिया लोग बोलते हैं हम तो गीता पढ़ता है, गीता पढ़ता है, लेकिन गीता ज्ञान देने वाला तो नहीं तुम्हारे पास। शास्त्रों में है, वो शास्त्रों में है, शास्त्रों में जो गीता लिखी है वो मनुष्यों ने लिखी है ना, भगवान तो कृष्ण है, मनुष्यों की लिखी हुई गीता थोड़ी कर जा रहा हूँ। गीता तो भगवान ने सुनाई है, भगवान अभी फिर सुना रहा है। महाभारत युद्ध जैसे 5000 वर्ष पहले हुआ था, ऐसे महाभारत युद्ध फिर होने वाला है। फिर वही मूर्छन तैयार हो गए, आप लोगों के में से निकले हुए युद्ध एक है, तैयार हो गए। बताओ कि ये ब्रह्म कुमारी है तो शास्त्रों को ही नहीं मानते, ये हम तो शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों में सारी बातें सही है, लेकिन उसको क्लैरिफिकेशन सही नहीं जो ब्रह्म कुमारियाँ दे रही है। वो कहती है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है वो तो बताओ। हाँ हमको बताओ, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है सिर्फ ब्रह्म कुमारियाँ बताती है, लेकिन ये नहीं बताती परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। अब ये बताते हैं कि एक व्यापी कहाँ है, आप समझो है परमात्मा उनकी ब्रह्म कुमारी मूर्ति में ही बताया हुआ है कि परमात्मा सूक्ष्म पत्रवासी नहीं होता, परमात्मा तो सूक्ष्म शरीर ही नहीं होता। न वालों को पूरा समझाओ, पूरा संसार बता दो। अगर ब्रह्मा कुमारियों द्वारा सारे विश्व का कल्याण हुआ होता तो कोई यादगार होती प्रजापिता ब्रह्मा की। संसार में तो प्रजापिता ब्रह्मा की कोई यादगार नहीं है। अब थोड़ा वो सुना भी है तो कौरवों में साथ दिया, कुमारी का गायन है वो कोई यादगार है। ब्रह्मा तो वहाँ पूजा नहीं होती नहीं अजमेर में घर घर में गली जैसे ये एक गली है, इस गली में गीता पाठ का तू लगेगा आगे चल के तो लोगों का निकलना तुम मुश्किल कर देंगे। तो एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे में घर से घुस जाओ, अपना क्लास कर लो। आगे क्लास को महत्व नहीं दे रहे हैं, आगे चल करके जब बाबा की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो क्लास को बहुत महत्व देंगे। युगलों की अपार महिमा निकलेगी, युगों ने ही पढ़ाई पढ़ाने की मनुष्य बनेगी। ये ब्रह्म कुमारी तो सन्यासी बनी गई थी, ये गृहस्थियों का ज्ञान सुना ही नहीं सकते, गृहस्थियों का राजयोग कैसे सिखाएंगे।
तो खुद ही सन्यासी है तो गृहस्थों को राजयोग कैसे सिखा सकती है? गृहस्थी को आपस में साथ साथ रह करके स्त्री पुरुष को साथ साथ रहकर काम विकास और विजय पाने में क्या तकलीफ होती है उनको क्या पता है? एक तो गृहस्थी जीवन से प्रैक्टिकल जीवन जी रहे हैं, वो जानते हैं कि काम विकास कैसे पानी। वो तो जनते ही सन्यासी बाल ब्रह्मचारी, वो सन्यासी को ज्ञान थोड़ी सिखाने वाले भी सन्यासी नहीं होने चाहिए। वकील वकील को पढ़ाएगा, डॉक्टर डॉक्टर को पढ़ाएगा, डॉक्टरी की पढ़ाई डॉक्टर के अलावा दूसरा कौन पढ़ाएगा? तो जो गृहस्थी है ही नहीं वो दूसरे गृहस्थियों को कैसे पढ़ाई पढ़ाएंगे? घर में विकारों पर विजय पाने का सवाल ही नहीं। और तो ढेर सारे हैं एडवांस के। बाबा नहीं वो बाबा जिससे तुम मिला वो तो ऐसे ही बाबा हो गया जैसे कि वो धर्म पिताएं आए और गा बजा करके चले गए, दुनिया का परिवर्तन नहीं हुआ, दुनिया नीचे गिरती चली गई। ऐसे ही तुम्हारा बाबा आया और चला गया, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय और ज्यादा नीचे गिर रहा है, टूट फूट और ज्यादा हो रही है, फायदा क्या हुआ? भगवान आएगा तो नई दुनिया बना के जाएगा, लेकिन बीच में ही चला जाएगा। बाबा तो बोलते हो कहते हैं तुम संग खाओ, तुम संग खेलूंगे, तुम बच्चों को गए नहीं, तुम संग साथ मिलाओ, तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। पहले ही कैसे चला गया? जब तक दुनिया का विनाश नहीं हुआ है तो बाबा जाने का सवाल ही नहीं। दुनिया में आग लगकर जब पूरी होगी तब चला जाऊंगा। मुरली में तो मुरली को पॉइंट भी उठाते, वो ना उठाए हम उठाएंगे। मुरली को गुप्त करना माने बाबा को गुप्त कर दिया। कोई लोग बोलते हैं हमको नहीं समझा, हमने देखा हमको नहीं समझा। उनको कहो कि उंगली हमको नहीं दिखाओ, ये दोनों उंगलियां कान में दो और कहो शिव बाबा को अल्लाह मुन्ना को याद करो, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तुम वो धर्म के हो नहीं तो जिनको प्यास नहीं लगी है। देखो बाबा ने बोला है 100 को संदेश देंगे तो उनमें से एक समझने वाला नहीं। तो 100 में से अगर एक बार निकल गया, 100 को जिसने हमने संदेश दिया तो हमारी प्रजा तो बनी नहीं सुनते तो न प्रजा बन जाती। भगवान आया हुआ है, साकार में आया हुआ, प्रैक्टिकल में आया हुआ है। तुम तो ब्रह्मा को सब भगवान मानते हो, ब्रह्मा को तो दुनिया में कोई भगवान नहीं मानता। पूजा नहीं उन लोगों को कोई संदेश नहीं, तो बेवकूफ बना रहे कि भगवान आया हुआ। कहाँ आया हुआ है? न पूछने वाले पूछते हैं भगवान आया हुआ है तो कहाँ है? चलो माउंट आबू में आया हुआ, कहाँ आया हुआ? गुजरात दादी में। अरे बेवकूफ क्यों बनाते हो? गुजरात दादी में ब्रह्मा की सोल आ रही, मनुष्य आत्मा की सोल आ रही, भगवान आया हुआ। भगवान की प्रवेशता में और मनुष्य आत्मा की प्रवेशता में अंतर नहीं होता है। बाबा तो एक ही है, दोनों कैसे होगा? है बाबा तो एक नहीं, त्रिमूर्ति से है। तुम झूठ बोलते हो, उनको कौन तुम झूठ बोलते हो? तुम्हारी मुरली देखो, मुरली में क्या लिखा है? त्रिमूर्ति से कहना चाहिए, एक नहीं है 3 है। भगवान के 3 स्वरूप है, 3 मूर्ति है। कंसी की तरह कृष्ण के पीछे पड़े हुए हो इसलिए, और तुम जो रावण की तरह पीछे पड़े हो इसलिए रावण को जंगल में रह के काम करना पड़ता। तुम जो भस्मासुर की तरह काम कर रहे हो इसलिए शंकर जी को भागे वाली फिर कर रहना पड़ता है। हमारा बाप ही भागा फिर रहा है, इसका मतलब हम बच्चों को भी भागना पड़ेगा। पांडव तो थे ही गुप्त, नहीं बात क्या है इसमें? पांडवों ने गुप्त रह के काम नहीं किया, मुझे टके से जवाब दो। क्या पांडव गुप्त नहीं रहते थे? पांडव तो 5 थे, मुट्ठी में थे, 5 थे। ये कौरव और यादव तो ढेर सारे हर शहर गाँव में घुसे हुए हैं। ये हमारी तो चटनी बना देंगे इकट्ठे होकर के, इसलिए गुप्त रहते। बोलने के लिए पॉइंट तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। जो सुनते हैं बस उन्हीं को सुना, जो प्यासे हैं उनको सुना, जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते जाते बैठ गए हैं उनको सुना। जो सुनते नहीं उनको प्यासे नहीं, उनको कैसे? जो अभी हमारे दरवाजे में जाने से भी नहीं सुनते हैं, वो तो आकर के भीख मांगेंगे, हमको भी 2 शब्द तो सुना दो, आकर के भीख मांगेंगे। इसलिए मुरली बोला मुसलमान भीख मांगेंगे।
ये मुसलमानों के फॉलोअर जो कहते थे हमको मत सुनाओ, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अल्लाह की यहाँ याद करेंगे, शिव बाबा को याद करो, ज्ञान में हमें नहीं चाहिए। इसीलिए बोलता है आप तुम लोग बेविचारी रहे, ये बाबा को छोड़ कर अलग बाबा हैं? वो बाबा को ब्रह्मा बाबा को छोड़ कर अलग बाबा लिया तो ये भी नहीं, और बोलते थे वो लोग तो स्कैंडल में जा, हमारे पावर होना पड़ा। एक बहन चंदन बन गया, कौन? टीवी के मतलब चंदन बन गया, आगे में हमारा पाव धुलाई करना। कैसे चंडाल बन गया, कसाई बन गया, कैसे बन गया? कुछ कसाई को जो पट्टा थोड़ी बन जाता है, कुछ बताओ तो। छोटा भाई को वो कसाई की पोसने से पट्टा मर जाता है, तुम बताओ तो कैसे बन गया चंडाल? चांडाल तो वो बनते हैं जो यज्ञ में दे करके फिर वापस लेते हैं, वो चांडाल बनते हैं। तुमने यज्ञ में बाबा को जीवन दिया और कहते हो कि अभी हमारा आश्रम है, तुम हो चांडाल। आगे हम लोग बोलेंगे तुम चले जाओ, चले जाओ। बाहर तो हमको बाप रे गेट से बाहर चले जाओ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। कौरवों ने पांडवों को बाहर निकाला दिया, इसलिए हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो भी उनको बाण मार गया हो, वो अगर कहते भी चले जाओ तो भी उनको बाण मारो। हाँ, बाण मार के जाओ, जो कसकता रहे उनके अंदर घाव करता रहे। अभी तो थोड़ा सा अभी बाबा हलचल हो गया है, वो जो चिंता हुआ हो रहा है मन में। अभी लास्ट प्रोग्राम हुआ, आपके तो बाप दादा का सारा दिन पंडाल बंद करके रखा एडवांस पार्टी की तरफ से। वहाँ आदमी पंडाल ही नहीं खोला, सबको अंदर ही खाना, अंदर ही नाश्ता, सब कुछ दूसरे दिन तक। रात में हुआ बाबा का प्रोग्राम, माउंट आबू तलहटी में एडवांस पार्टी वालों ने प्रोग्राम बनाया कि बैनर लेकर के और प्रभात फेरी निकालेंगे और बच्चे बांटेंगे उस दिन, जिस दिन बाप दादा आए थे 25 तारीख को। तो उनको बाद में पता लग गया कि ऐसे प्रोग्राम बन रहा है एडवांस पार्टी वालों को। उन्होंने नोट देकर के पुलिस को, प्रशासन को, और 144 की धारा लगवा दी। पूरे जिले में 144 की धारा लागू होगी। फिर भी 2-4 पार्टियां आ गई एडवांस पार्टी, जिनको पता ही नहीं था कि वहाँ 144 धारा लग चुकी। बस उसी तरह से उन्होंने सारा दिन पंडाल नहीं खोला, सबको अंदर ही बंद कर दिया। 25-30 हजार लोग सुनने वाले थे अंदर, इतना तो डरे हुए बैठे। ताल कटोरा गार्डन का प्रोग्राम को पूरा कैंसिल कर दिया। दिल्ली में ताल कटोरा गार्डन में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था ब्रह्मा कुमारियों का, वो पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि इन लोगों ने पर्चे बांटने की प्रशासन से परमिशन ले ली। इतनी पार्टियां बाद में ब्रह्मा कुमारियों की बसें भर भर के आई ताल कटोरा गार्डन से, क्यों बंद हो गए, क्या बात हो गई, चले गए तो डिस्टर्ब नहीं हो रही। इतना बड़ा प्रोग्राम करना और फिर उसके बाद लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं बसें कर करके, ट्रेन से रिजर्वेशन करा के, और वहाँ आए तो देखा तो खाली पंडाल, कुछ है ही नहीं। तो लोग भी बैठे नहीं, ये क्या बात है, क्यों नहीं प्रोग्राम किया? उसका सुनने से क्या देवता और क्षत्रिय धर्म का है। क्षत्रिय धर्म का, क्षत्रिय धर्म से चंद्रवंशी बोला जो हाँ तो देवता क्षत्रिय और देवता ऐसे बोला, इसलिए आपको पूछा कि बोलिए। देवी देवता सनातन धर्म के हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मिलकर के कंप्लीट राजधानी स्थापन होगी। वो देवी और देवता सनातन धर्म के कहे जाएंगे। देवी वो जो देवियां निकलेंगी विजयमाला से, और देवता है जैसे धर्म का बाद में सुधरते जा रहे हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं भी तो रुद्रमाला में है, लेकिन वो बाद में निकलती जा रही है। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। लेकिन पहले तो कदम सूर्यवंशी को ही बढ़ाना पड़े, वो नहीं सुनेंगे किसी की। सूर्यवंशी से सूर्य को फॉलो करते चले जाएंगे, चंद्रमा की परवाह नहीं करेंगे। विनाश के टाइम पर अगर खुशी कायम रखनी है तो जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले अमृत वेला और ईश्वरीय सेवा, उसमें लगे रहने से हमारी सेफ्टी ज्यादा होगी। जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा, बच्चे हैं तो बाप का जो धंधा करेंगे तो विनाश के टाइम पर उनकी सेफ्टी जरूर होगी।
अरे पेट को क्या चाहिए? पेट को चाहिए 2 रोटी, पाव और आटा, ज्यादा नहीं चाहिए। और ज्यादा खाने से तो शरीर लुत्थुम पुत्थुम हो जाता है। अभी अभी तो ब्रह्म कुमारियाँ बाहर से भले बोलती है, तमंग करती है, लेकिन अंदर से ठंडी हो गई है। अंदर से अब उनको दम नहीं रही है ज्यादा, और समझ गए कि हमारे हाथ से निकल गया, अब हम आगे बढ़ भी नहीं सकते, हम तो फंस गए। हाँ, बाहर बाहर बोलते हैं ऐसे, वो पैसे की दम दिखाते हैं बस। अंदर का एक स्टूडेंट निकला है ना, वो एक निकला हुआ स्टूडेंट उधर ना बताए कि हम उधर जाते हैं, चुपचाप इधर कनेक्शन रखे गुप्त में, और उधर सारा जान ले कि कौन कौन आत्मा ऐसी है जो सुनना चाहती है, उन्हीं को टैकल कर लो। और जगह तो ऐसे ही हो रहा है, उनको पता ही नहीं रहता है कि एडवांस पार्टी को कौन चला गया, उन्हें मालूम ही नहीं है। वो अंदर अंदर घुसे बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं सारी बात। उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाते, आगे करके, और सबसे एड्रेस पूछ के कौन आना चाहते हैं, कौन सुनना चाहते हैं, उनसे कनेक्शन करके और सुना दो सारी बात। अब ज्यादा लंबा चौड़ा चक्कर सुनाने का टाइम नहीं रह गया। अभी सिर्फ बाप का परिचय, बाप का परिचय पूरा बुद्धि में बैठ गया, बस फिर उसके बाद वो अपने आप दौड़ेगा। सब कुछ नहीं मिला है कभी जो आते हैं बाबा, उनमें आधे तो ऐसे हैं जो ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते जाते फिर ठहर गए हैं, जा ही नहीं गए। हाँ, उनको भी संदेश नहीं मिला। अव्यक्तवाणी में बोला है, माताओं के ग्रुप से, माताओं के ग्रुप से बोला है, ईश्वरीय सेवा में लग जाएगी, पंख लग जाएंगे शरीर को। राम कृपा नाथ सब होगा, जो यही भांति बने सही होगा। माता जी बोल रहे यदि वो कोई बहन जी को सैनिटाइजर तो बोल दे, कुछ असुविधा आएगी कि? हाँ, असुविधा तो नहीं आएगी, वो तो दिलाने का इंजेक्शन दे देंगे। मना करेगा ना, मना करेगा, वो तो सीधा अखबार निकाल के देंगे, ये अखबार जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये अखबार में तो क्या लिखा है, ये अखबार में तो क्या ये जो हम लोग ये दोनों माँ बेटी आ करके घर घर आ करके सबको मैंने वो बाबा का अलग बाबा का बात बोलने शुरू कर दिया है। अलग बाबा का लिए त्रिमूर्ति शिव बाबा कहा जाता है। उन लोग आने से फोन करने से फोन बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और उन लोगों को गेट से पासवर्ड देखने से गेट बंद कर दीजिए, लगता है आपने गेट बंद किए होंगे ना उनके लिए, आपने उनको अपने राज्य में से बाहर निकाल दिया होगा, उनको अपने देश की हद से बाहर निकाल दिया। हिसाब पूरे होने दो, और खुश होना चाहिए। वाह मेरा पार्ट, अनेकों को बाहर कर दिए थे। हाँ, फिर उनकी जितनी हद है इस समय इस जन्म में, उससे उन्होंने बाहर निकाल दिया। तुम्हारी जितनी हद थी राजा की, उसे तुमने उनको गेट आउट, हमारे राज्य में नहीं गए ना, अब ये बात उनको सुना दीजिए। अगर जब वो गेट आउट करे तब उनको ये बात सुना करके तब आना। अरे हमसे ज्यादा बाण किसके पास होंगे? हम बोला उन लोगों से बाबा बाप और माँ दोनों नहीं बने थे, बच्चा के जब अभी तो माँ है ना बाप है, उनसे कहो ना अभी जगदम्बा माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं है। तो ऐसे ही बातों में बहला रहे हो। ब्रह्मा बाबा भी है, वो तुमको टांट मार के चला जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि ब्रह्मा बाबा आगे तुम्हारी में टांट मार के चले गए। तुम्हारा जगदम्बा की तो पूजा होती है, फिर जब जगदम्बा और बाबा दोनों तुम्हारे साथ साथ हैं, तो ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? इसे साबित होगा ना वो बाबा है ना वो ब्रह्मा है। मुरली में भी बोला हुआ है, वास्तव में ये ब्रह्मा बाबा तो ये ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारे ब्रह्मा बाबा लेंगे, मुरली में ये बोल दिया। इनसे कोई वर्षा नहीं मिलना है, ब्रह्मा बाबा से तो वर्षा मिलता है। पिला पिला के जिनको खुश कर देते हैं, तो छोटे बच्चे हैं। और क्या, सेंटर को बड़ा अच्छा म्यूजियम बना दो, चारों तरफ से चित्र लगा करके खूब आकर्षक बना दो,
तो उसे देख करके तो बच्चे घुसेंगे ना, ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान के आधार पर जो समझदार आत्मा है वो